Welcome students, welcome back, welcome to the new video. So in this video we will study some special integrals, how to solve these, what are the methods, what is the procedure to follow in order to solve that type of special integrals. So for that, first of all we have to write the formulas, or we have to write that special integrals. Now they are directly, so directly we can write. So the first one, so integral of 1 upon a square plus x square dx. Okay, now so there are some special integrals are here. Integral of 1 upon a square minus x square, integral of 1 upon x square minus a square dx. Okay, now integral of 1 upon, just we make the square root now, a square minus x square dx. Fifth one, integral of 1 upon under root a square, so first of all plus, then a square minus x square dx. Sixth one, integral of 1 upon under root x square minus a square dx. Okay, so there is some expansion of this. Expansion means there are the formulas. We can prove these all, but proofs are already given in the textbook, so already that तुम उससे वहाँ से पढ़ लेना. Now we write it directly and learn it directly, and we use directly in the upcoming problems. Now here 1 upon a square plus x square, that should be 1 upon a tan inverse of x by a plus c. So integral of 1 upon a square minus x square dx, that should be, it is 1 upon 2a log of mod of, it is a plus x upon a minus x plus c. Now this is 1 upon x square minus a square, 1 upon 2a log of mod of x minus a upon x plus a plus c. Now this is again integral of 1 upon under root a square plus x square, that should be directly log of mod of x plus under root a square plus x square plus c. Now here and here we can write here first log of mod of x plus under root x square minus a square dx plus c, and here under root a square minus x square, that will be sine inverse of x by a plus c. So these 6 formulas, 6 special integrals and their expansion will be very useful to solve some types of problem, that is from this next exercise. Okay, so these are some, and one more formula, one more special integral is there, so you can learn from that textbook. उस तरह से तुम उसमें कर लेना. 6 तुमको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने वाले आएंगे. That's why we write this, we learn this, and we use this in the to solve the exercise. Okay, then one more thing I like to add here, that is some special types of integrals. Some types of integrals are there, that is 1 upon a x square plus bx plus c, या होंगे 1 अपॉन अंडर रूट में होगा, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, इस टाइप्स के इंटीग्रल्स तुमको आएंगे. क्या करना है इस तरह के लिए, इस टाइम में हम क्या करेंगे, जब इस टाइप के इंटीग्रल्स हमको आएंगे तब हम क्या करेंगे. नाउ जस्ट सबको पता है कि हाउ टू कंप्लीट द होल स्क्वायर. हमको a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हमको इसको लाना है. ओके, यानी ये फॉर्मूला फुलफिल्ड हो, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर टर्म, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर. होल स्क्वायर कंप्लीट करना हमको अच्छे से आना चाहिए.
वो एक जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें मैं जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे उस टाइप्स में बता दूंगा। ओके, सो इस टाइप्स के अगर आए तो दैट्स व्हाई वी कैन, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड। इसके बाद भी हम जो भी आएंगे तो इसमें भी हमको रिड्यूस करना पड़ेगा, बाद में हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, नाउ वी हैव टू टेक द कंप्लीटिंग द स्क्वेयर, कंप्लीटिंग द होल स्क्वेयर, कंप्लीटिंग होल स्क्वेयर, स्क्वेयर्स हमको कंप्लीट करना है। ओके, ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ए माइनस बी होल स्क्वेयर सबको आता है। ओके, देन कुछ ऐसे स्पेशल टाइप्स ऑफ होंगे और जैसे दिए होंगे a इंटू साइन स्क्वेयर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस सी डी एक्स। इस टाइप में क्या होंगे, दैट इज द टाइप में जो भी एक तो साइन स्क्वेयर होगा, कॉस स्क्वेयर होगा, साइन स्क्वेयर होगा, कॉस स्क्वेयर होगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको स्पेशल मेथड अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे इस टाइप की हुए तो वी हैव टू डिवाइडेड बाय, कॉस स्क्वेयर से डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वेयर एक्स से अगर डिवाइड कर दिया तो ऊपर में क्या बनेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स मीन्स सेक स्क्वेयर एक्स। अब ऊपर में बनेंगे सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स। यू नो सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। अगर हम tan x पुट कर दिए, tan x पुट कर दिया t की जगह, क्या tan x की जगह t पुट कर दिया तो हमको डेरिवेटिव क्या मिलेगा, सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स। इसका मतलब हमको जो डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे कॉस स्क्वेयर एक्स से डिवाइड किया, इसका मतलब डिनोमिनेटर भी कॉस स्क्वेयर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। कॉस स्क्वेयर एक्स से डिवाइड करने के बाद वहां पे एडजस्टमेंट करके हमको सब जो बातें हैं वो tan में कन्वर्ट करनी है। आफ्टर कन्वर्टिंग इन द tan, ऊपर में तुमको मिलेगा सेक स्क्वायर डी एक्स, यू कैन पुट tan x इज इक्वल टू टी, सेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, पुट कर दो, यू कैन सॉल्व एंड यूज दीज फॉर्मूलाज। ओके, नाउ वन मोर स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स आर 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c। अब ये स्क्वेयर होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम डिवाइड करेंगे cos स्क्वेयर x से। अगर यहां पे sin x और cos x है तो क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स में दोनों होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स में sin x होगा, कुछ प्रॉब्लम्स में cos x होगा। उस तरह से हम क्या करेंगे। नाउ हियर अगर ये टाइप का इंटीग्रल हमारे पास आया, सो वी हैव टू यूज सम स्पेशल मेथड अगेन। सबकी अलग अलग मेथड है, देयर आर 3 और एक आएगा 4th, सबकी एक अलग अलग मेथड है। वी हैव टू पुट tan x बाई 2 इज इक्वल टू टी। tan x बाई 2 अगर t हुआ, इसका मतलब डिफ्रेंशिएट अगर मैंने किया तो इसका डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वेयर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। इसका मतलब हुआ सेक स्क्वेयर x बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी टी। ओके, नाउ सेक स्क्वेयर x मीन्स सेक स्क्वेयर थीटा मीन्स क्या हुआ, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू हाउ मेनी, 1। सो सेक स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। सो इसका मतलब ये हुआ सेक स्क्वेयर x बाई 2 मीन्स 1 प्लस tan स्क्वेयर x बाई 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। अब tan x बाई 2 की वैल्यू है t, सो इसका मतलब हो 1 प्लस टी स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी, और dx की वैल्यू हुई 2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अगर इस टाइप का इंटीग्रल आए तो पुट करो tan x बाई 2 इज इक्वल टू टी डायरेक्टली, देन वी गेट dx इज इक्वल टू 2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। हमको पता है व्हाट इज, अगर इसमें एक तो साइन है नहीं तो कॉस है। साइन x का एक फॉर्मूला, साइन x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x बाई 2। ओके, सो इन दैट केस 2 इंटू टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर बन गया। cos x अगर हुआ तो cos x की वैल्यू हुई 1 माइनस tan स्क्वेयर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो इसका मतलब हुआ 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक अच्छा एक इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, एक स्पेशल इंटीग्रल है, इसकी मेथड हमको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर इस तरह का इंटीग्रल आए तो वी हैव टू पुट tan x बाई 2 इज इक्वल टू टी,
देन आफ्टर ये सॉल्व हमेशा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने के लिए है. dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square, and then if sin x is equal to 2t upon 1 plus t square and cos x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. इस टाइप से हम आगे में फिर ये पुट कर देंगे and then we solve with the use of that formula or completing the whole square. Okay, now one more thing, one more topic, one more integral is 1 upon a sin 2x plus b cos 2x. अगर 2x हुआ तो क्या, स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय cos square x and put tan x is equal to t. अगर sin x आया तो tan x by 2 is equal to t. अगर sin 2x है और cos 2x है तो क्या करेंगे हम, tan x by 2 नहीं, हम tan x is equal to t पुट करेंगे. What we put, tan x is equal to t. अगर tan x t पुट कर दिया, so that's why after solving this we get dx is equal to only dt by 1 plus t square. Okay, and then sin x is equal to again 1 minus t square upon sin 2x लेना पड़ेगा. sin 2x की वैल्यू क्या होगी, 2 tan x upon 1 plus tan square x. so ये भी सेम 2t upon 1 plus t square and here 1 minus t square upon 1 plus t square. so ये चार इंटीग्रल्स हमको स्पेशल इंटीग्रल्स ध्यान में रखने हैं, और हमको वो जो फॉर्मूलाज है, हमको 6 फॉर्मूले हमने पहले लिखे थे स्टार्ट में, वो हमको ध्यान में रख के उसको यूज करना है. ओके, सो दिस इज द बेसिक ऑफ दिस फॉर एक्सरसाइज 3.2b. सो वी डायरेक्टली जंप, थोड़ा ध्यान में रख लेना उसको, बाद में हम उसको उसका यूज करने के बाद हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना है. Okay, now exercise 3.2b. Now the examples. So what is that example? So examples are 1 upon 4x square minus 3. So 1 upon 4x square minus 3. We have to integrate this. So we write like solution, let I is equal to integral of 1 upon 4x square minus 3 dx. अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखना है. ओके, सो व्हाट, I इज इक्वल टू, हमको पहले ये जो टर्म है ये फ्री करवानी है, हमको 1/4 बाहर लेंगे हम. 4 अगर बाहर लिया तो हमको मिलता है x स्क्वेयर माइनस 3/4 dx. ओके, यहां से भी 4 लेके भी कर सकते हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे. I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ये है √3/2 का होल स्क्वेयर dx. ओके, नाउ हियर ऑब्जर्व हियर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस दैट इज द कांस्टेंट टर्म a स्क्वेयर 1 upon x square minus a square dx. That means 1 upon 2a log of mod of x minus a upon x plus a. So we can use this. I is equal to 1/4 as it is. Now expand this formula. That will be 1 upon 2a. A means √3/2 into log of mod of x minus a. X minus a means x minus √3/2 upon x plus a means x plus √3/2 plus c. Okay, just try to solve this. I is equal to 1 upon 4√3 log of mod of, try to solve this again, 2x minus √3, नीचे में आएगा 2 और इसके भी नीचे 2 वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मिला ओनली 2x plus √3 plus c. So this is your I. Okay, in this way you can solve, in this way you can solve these type of problems. Okay, one more thing, directly we write solution. One more problem from here on.
let I is equal to integral of 1 upon 25 minus 9x square dx. अब यहां से मैं कॉमन कितना निकालू? दैट विल बी टेक कॉमन 9. I is equal to 1 by 9 into integral of 1 upon 25 by 9 minus x square dx. Okay, so I is equal to 1 by 9 integral of 1 upon 5 by 3 whole square minus x square dx. Now this is obviously in the form. So this is in the form integral of 1 upon a square minus x square. Now what is that a square minus x square? That should be 1 upon 2a log of mod of a plus x upon a minus x. ये फॉर्मूला हमको लर्न करना ही पड़ेगा. ओके, सो I should be equal to 1 by 9 into that expansion is 1 upon 2a. 2a means 2 into a कितना है? 5 by 3 into log of mod of 5 by 3 plus x upon 5 by 3 minus x plus c. Now just try this. So 3 3s are 9. 3 into 2 into 5. So that will be 1 by 30 log of mod of, इसको solve करो, 5 plus 3x upon 5 minus 3x plus c. So this is your I. Okay, so in this way you can solve that question number first, second as well as third. Third we can take third 1 upon 7 plus 2x square, you can common 2, उसका आएगा 7 by 2. 7 by 2 किसका स्क्वायर होता है? रूट 7 by रूट 2. Okay, then you can use that formula. उसमें tan inverse something is like this. Okay, now then we can make the square root terms. 3x square plus 8. 3x square plus 8. कौन? वेळ लागेल बेटा, आता 12:15 पर्यंत थांबावं लागेल. So under root 3x square plus 8. So these formulas are different. These formulas are different means 1 upon under root last three formula, 4th, 5th and 6th. Now here I is equal to same term, same formula, same method से जाओ, सिर्फ तुमको formula different, formula change करना है बस. So I is equal to, you can make 3 common from the square root. So 1 upon root 3 common. Integral of 1 upon under root x square plus 8 by 3 dx. स्क्वायर रूट में I is equal to 1 by root 3 integral 1 upon x square under root में x square plus 8 by 3 means root 8 by 3 root 3 whole square dx. Now it is in the form 1 upon under root x square plus a square. Now that will be, that expansion is I is equal to 1 by root 3 into, what is that expansion is? Log of mod of x plus under root x square plus a square. ठीक है ना? So then log of mod of x means x as it is है, plus under root x square plus root 8 upon root 3 whole square plus c. ओके, ये भी तुम आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो, और अगर कुछ है आंसर में लिखना है तो ये ब्रैकेट जो है ये यही है, दैट शुड बी दिस. सो यहां तक भी तुमने आंसर लिख लिया तो भी चलता है. रूट 8 बाय रूट 3 होल स्क्वायर, तो तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 8 by 3, x square plus 8 by 3. Okay, now this is the problem number first one. Okay, now the next one is also we can take. So question number fourth one is this. 5th and 6th you can solve, same method you can apply, then question number 9th, 7, 8 and 10,
All threes are the simple one, are the same one, so we can take any one. So we can take seventh here. So what is seventh? Seventh is under root 9 plus x upon 9 minus x. So let I is equal to integral of under root 9 plus x upon 9 minus x dx. Okay, so 9 plus x upon 9 minus x. So then this is the special type of problem. Now what we have to make here? Now under root 9 plus x and 9 minus x, we have to, or we can rationalize these all three. लक्षात ठेवायचे, ध्यान में रखना ये जो तीनों प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक तो रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज ही कर दो और सिंपल होता है. देखो 9 प्लस एक्स upon 9 minus x, you can multiply 9 plus x upon 9 plus x dx. Now after rationalization we will get integral of under root 9 plus x whole square upon 9 square minus x square, that is under root, or you can write 81 minus x square dx. अब इसको अंडर रूट के बाहर निकाल दो. I is equal to, you get 9 plus x only upon under root 81 minus x square dx. Now here I is equal to what we get, integral of, now there are two different integrals are there. Separate the integral first. 9 upon under root 81 minus x square dx plus integral of, you make x upon under root 81 minus x square dx. Now here I is equal to, I can make 9 common, 9 बाहर लेंगे, 1 upon under root 9 square minus x square dx plus here integral of, now you know what is the derivative of 81 minus x square, which is 0 minus 2x. So I can make minus 2x here upon minus 2x अगर किया तो मुझे यहाँ पे ऐसे लेना पड़ेगा, minus 1 by 2 into 2x under root 81 minus x square dx. Okay, now here I can use that formula very easily. 9 into a square minus x square, a की वैल्यू है 9, a square minus x square, that is sine inverse of, that is sine inverse of x upon a, means x by 9 minus 1 by 2 into, that will be f dash x upon under root fx. ठीक है, ये फॉर्मूला मिलेगा. देखो ये f dash x की वैल्यू एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ fx अंडर रूट में, व्हाट विल बी, इट विल बी 2 into अंडर रूट 81 माइनस एक्स स्क्वेयर डी प्लस सी. ओके, यहाँ पे हमने दो फॉर्मूला यूज किया, एक तो ये है, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये लिख देंगे, दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ f dash x अपॉन अंडर रूट fx dx is equal to 2 into under root f of x plus c. Okay, this formula we can use. Now here 2 get cancelled. Okay, so I should be equal to 9 sine inverse of x by 9 minus under root 81 minus x square plus c. So this is your I. In this way you can solve. In this way you can solve the problem number 7. Okay, that is the very unique method. Problem number 8 and problem number 10 you can solve.
with the use of this method. Okay, then now the important things, now the important problems are coming where the whole square complete करना है हमको. Now the first one, 1 upon x square minus plus 8x plus 12. 1 upon x square plus 8x plus 12 होल स्क्वायर कंप्लीट कैसे किया जाता है, दैट वी हैव टू यूज, दैट वी हैव टू अप्लाई हियर. कैसे करेंगे, कैसे किया था हमने अभी तक, उसका एप्लीकेशन हमको करना है. हम सबको पता है कि ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है. व्हाट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर? दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. 2ab की टर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां से हमको ए और बी की वैल्यू ध्यान में आएगी. ऑब्जर्व दिस. सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इट इज इन द फॉर्म 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ भी करो सेम ही गिरता है. वी हैव टू स्प्लिट. अब वहां पे मैं नहीं जाता हूं, वो किताब की जो है अपनी मेथड उससे भी तुम सॉल्व कर सकते हो, बट हियर ऑल्सो वी हैव द डिफरेंट मेथड एंड वेरी सिंपल मेथड. अगर पहली टर्म एक्स स्क्वायर हुई तो 8x को जस्ट ट्राई टू स्प्लिट 2 इंटू एक्स इंटू 4, 2 इंटू एक्स इंटू 4. इसका मतलब क्या हुआ, 8x को मैंने स्प्लिट किया 2x 4, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस 2ab. तो b की वैल्यू हमको क्या मिली 4. 4 का स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर चाहिए तो 16 चाहिए, तो राइट डाउन 16. लेकिन यहां पे कितने हैं 12, तो 12 है तो हम क्या करेंगे -4 करेंगे. 16 -4 कितना हुआ 12. सो दोनों एडजस्टमेंट हम इजीली कर सकते हैं. अगर डायरेक्टली है तो डायरेक्टली करेंगे. नाउ ऑब्जर्व दिस, दिस इज i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज x प्लस 16 मीन्स 4 स्क्वायर, 4 होल स्क्वायर, और ये 4 हुआ दैट इज 2 स्क्वायर dx. अब ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में. दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. वी अप्लाई, सो i इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, इट इज 1 अपॉन 2a. 2a मीन्स 2 इंटू 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए यानी x प्लस 4 माइनस 2 अपॉन x प्लस 4 प्लस 2 प्लस c. नाउ i शुड बी इक्वल टू 1/4 log of mod of x plus 2 upon x plus 6 plus c. This is your I. This is your I. So ये बहुत ही important topic है इस चैप्टर का. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हमको इस तरह की टर्म्स आएंगी और हमको करनी पड़ेगी. ओके ओके. सो I इज इक्वल टू, सबसे पहले 3 को बाहर निकाल दो, 1/√3 बाहर रूट में है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 5x/7 सॉरी 3 प्लस 7/3 dx. अब i शुड बी इक्वल टू 1/√3 होल स्क्वायर कंप्लीट करना है. ध्यान से देखो, 1 अपॉन, नाउ एक्स स्क्वायर इज हियर, अंडर रूट ये सबके पास है, एक्स स्क्वायर इज हियर. ओके, 5x/3 को स्प्लिट करना है 2 के फॉर्म में, 2ab चाहिए बीच में, सो 2 इंटू एक्स इंटू, अब 5x/3 है, हमने लिखा है 2x, तो क्या क्या करेंगे, तो हम डिवाइडेड बाय 2 यानी ये करेंगे 6, ये करेंगे 5. देखो आता है क्या, 5/6, 2 2 3 जा 4, सो ये 5/3, 5/3x. यहां पे लिखना पड़ेगा 5/6. ठीक है, सो 2 इंटू एक्स इंटू 5/6 एडजस्टमेंट करो, यू विल गेट दिस.
तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर यानी कितना 25/36। ये किया हमने ऐड, तो हमको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और हमारे पास कितना है 7/3 प्लस 7/3, ठीक है। नाउ ये ध्यान में रखो, ये हो गया होल स्क्वेयर और इसको ऐड करके करना है ए स्क्वेयर। सो आई इज इक्वल टू 1/√3 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ये हुआ x प्लस 5/6 होल स्क्वेयर। इसको करना पड़ेगा 7/3 माइनस 25/36, ठीक है। तो यहाँ पे 36 करो, 36 का 12 इंटू 7, 12 इंटू 3, सो 12, सो 84 माइनस 25/36, 84, सो 84 में से 25 निकाल, 24 भी निकाले तो 40, सो 49/36, 49/36 इज, सॉरी इट इज 59/36, yes, so 59/36 means √59/6 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ओके। सो यू कैन राइट प्लस 59/36 इंटू dx, ओके। सो इसको हम क्या लिखेंगे, दैट विल बी रिटन एज i इज इक्वल टू 1/√3 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x प्लस 5/6 होल स्क्वेयर प्लस √59 अपॉन 6 होल स्क्वेयर dx, ओके। सो i शुड बी इक्वल टू 1/√3, ये हुआ x स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर मीन्स दैट विल बी tan इनवर्स, सो सॉरी नो इट इज log ऑफ mod ऑफ, अंडर रूट में है, so that is square root, so log of mod of x की वैल्यू यहाँ पे x प्लस 5/6, so I can write x प्लस 5/6 प्लस अंडर रूट x प्लस 5/6 होल स्क्वेयर प्लस अंडर रूट 59/6 होल स्क्वेयर प्लस c। सो दिस इज यूर आई। ऐसे ही आई लिख दिया तो भी तुम्हारा कोई भी मार्क काट सकता नहीं है, ओके। सो इस तरह से भी तुमने आंसर लिख लिया, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो इन दिस टाइप स्पेशली ऐसे तुमको ये सॉल्व करते जाना है, ओके। नाउ देर आर अगेन सो मेनी प्रॉब्लम्स हियर, so specially we think for question number 1, question number 2 we'll take it in the next video. So question number 2, question number 1 में जो भी मिलेंगे हमको उसको हम सॉल्व कर देंगे। जैसे अंडर रूट के प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर देना। 17th नंबर प्रॉब्लम है 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 3x प्लस 2, यू कैन मल्टीप्लाई, मेक दैट क्वाड्रेटिक, मेक दैट x स्क्वायर प्लस ax प्लस b लाइक दिस। एक टॉपिक में ले लेता हूँ, so the next one is integral of 1 upon 4 plus 3 cos square x। so ये कौन से फॉर्म में है, दैट इज द स्पेशल फॉर्म, a sin square x प्लस b cos square x डिनोमिनेटर में चाहिए। उस तरह से हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय cos square x करेंगे, डिवाइडेड बाय cos square x। सो i इज इक्वल टू क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन cos square x, यानी हो गया पूरा ऊपर sec square x, नीचे में 4 अपॉन cos square x यानी 4 sec square x प्लस 3 cos square x अपॉन cos square x दैट इज 3 dx। नाउ sec square x ऊपर का एज इट इज रख दो,
अपॉन ये सेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3dx. नाउ आई शुड बी इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx. ये हो गया 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स, ऐसे लिखूंगा 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस 3 dx. नाउ फाइनली ऐसे मिला. सो दैट शुड बी I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx. नीचे मिला है 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 7. ओके, नाउ इन दिस वे व्हाट वी कैन पुट. ऐसे अगर इंटीग्रल होंगे तो पुट क्या करना था, tan x इज इक्वल टू t एंड sec square x dx is equal to dt. Okay, so I should be equal to, और पुट करेंगे हम पहले. So put tan x is equal to t, then sec square x dx directly is equal to what, dt. So I should be integral of 1 upon 4t square plus 7 into sec square x dx and a dt. Now this, observe this. Problem number first, very similar. So I 1 by 4 common, integral of 1 upon t square plus 7 by 4 dt. So I is equal to 1 by 4 integral of 1 upon t square plus root 7 by 2 whole square dt. अब सिर्फ फर्क इतना पड़ा कि x की जगह t हुआ, x वेरिएबल था, यहाँ पे t वेरिएबल है, एक्सपांड कर दो इसको. सो I शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 4, क्या इसका एक्सपांशन, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 बाय a मीन्स 1 अपॉन रूट 7 बाय 2 tan इनवर्स ऑफ x by means t upon root 7 by 2 plus c. Okay, now try to solve this. 2 2s are 4. I should be 1 upon 2 root 7 tan inverse of, अब 2 ऊपर जाएगा, 2 t की वैल्यू है tan x upon root 7 plus c. So this is over. ये एक थोड़ा सा ध्यान में रखो, जो भी करेंगे, जो भी मेथड होगी, कैसे भी करेंगे तो भी ये आना ही है, यहाँ से तुमको सॉल्व करना ही है. सो इसको कैसे सॉल्व करते हो, जो मैंने अभी तक लिया वो प्रॉब्लम तुम अच्छे से करो और उसका जो यूज है यहाँ पे करो. ओके, देन 1 अपॉन cos 2x प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन cos 2x प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स. अब cos 2x यहाँ पे तुम बोलेंगे अभी cos 2x आया सर, ये भी आया, लेकिन cos 2x का फॉर्मूला है हमारे पास स्क्वायर में. सो 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 3 sin स्क्वायर x dx. Then I is equal to integral of 1 upon cos square x as it is, we can write minus sin square x plus 3, so plus 2 sin square x dx. Now I should be, अब क्या हुआ, अब cos square x भी है, sin square x भी है, divided by cos square x. So I should be equal to integral of, ऊपर में बनेगा sec square x, नीचे में cos square x upon cos square x 1 plus 2 tan square x dx. Now here observe this again, what we have to put, put tan x is equal to t, then sec square x dx is equal to dt. Then I should be equal to integral of sec square dx dt हुआ तो 1 अपॉन लिखेंगे 1 plus 2 t square dt. ओके, सो 2 बाहर निकाल दो, 2 बाहर निकाला तो 1 by 2 हुआ, इंटीग्रल हुआ 1 अपॉन, यहाँ पे हुआ 1 by 2 प्लस टी स्क्वायर डी टी. ठीक है, 1 by 2 किसका स्क्वायर है, सो आई शुड बी 1 by 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 by रूट 2 होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी.
अब ये हुआ कौन से फॉर्म में, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर के फॉर्म में. सो इसका एक्सपांशन होगा i इज इक्वल टू 1/2 ऑलरेडी है, इसको होगा 1 अगेन ए मीन्स 1/√2 tan इनवर्स ऑफ 1 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, x अपॉन x मीन्स t और a मीन्स 1/√2 प्लस c. So 2/√2, so only √2. So I should be equal to 1/√2 only, 2/√2 √2. So 1/√2 tan inverse of ये √2 पर और t की वैल्यू tan x plus c. So this is I. This is I. In this way you can solve these square terms. One more problem, sin x upon sin 3x dx. अब तुम बोलेंगे सर यहाँ पे तो स्क्वायर टर्म है ही नहीं, लेकिन ये टाइप में है तो कुछ नहीं है. sin 3x का फॉर्मूला हमको पता है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर sin 3x? sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x अपॉन sin 3x मीन्स 3 sin x minus 4 sin cube x. Okay, then sin x कॉमन निकालो ऊपर नीचे से. sin x कॉमन we get 3 minus 4 sin square x dx. sin x कैंसल्ड हुआ, I is equal to integral of 1/3 minus 4 sin square x dx. ओके, अब देखो ये वही टाइप में आया है. दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई द सेम मेथड as we apply in the previous one. What we can divide it by cos square x, and then you can put tan x is equal to t and sec square x dx is equal to dt. Okay, so that is all about question number 1. Okay, now we will study the question number 2. Okay, now in the question number 2 there is first problem is we already written that solution. Let I is equal to 1/3 plus 2 sin x. So as we studied in the last lecture or last video, we know the type or we know the special integrals. We know if the integrals of the form a sin x plus b cos x plus c, if this type of integrals, in this type of integrals, what we have to do, we have to make sin x cos x, only sin x and cos x. We have to make tan x by 2 is equal to t, put tan x by 2 is equal to t, then sin x is equal to, or then dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square, and sin x and cos x, the values of sin x is, it is 2t upon 1 plus t square, and the value of cos x is 1 minus t square upon 1 plus t square. So in the last lecture we already studied that, we already written that, we already understand that. So now we have to use these things in that particular problem. Now we have to make here that 1/3 plus 2 sin x, that is the same form, it is in the form like this. Okay, now then we have to use that rule, we have to use that method that we studied earlier when we taken that. Now put what we can put, it is tan x by 2 is equal to t. Okay, if we put tan x by 2 is equal to t, then obviously after solving what will we get? We get dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square, and here only sin x is here, that's why we only write the value of sin x. Therefore what is the value of sin x after solving? That will be 2t upon 1 plus t square. So all three values we can put here, or only two values. So I becomes integral of 1 upon dx means 2 dt upon 1 plus t square, and 3 plus 2 sin x means 2t upon 1 plus t square. Okay, now we have to solve this, we have to solve it further.
solve the denominator first of all. So I is equal to, so 1 plus t square in the denominator, you try to solve here. So integral of 1 upon 3 into 1 plus t square plus 2 into 2t upon 1 plus t square into 2 dt upon 1 plus t square. So that 1 plus t square get cancelled. So I becomes, it is 1 upon 3 plus 3t square plus 4 times t into 2 dt. So 2 you can make it outside. So 2 into integral of 1 upon, so it is 3t square plus 4t plus 3 dt. Okay, now जैसे हमने कल भी पढ़ा था, क्या करते थे, यहाँ पे 3 कॉमन निकालना है हमको. सो डायरेक्टली आई कैन मेक 3 कॉमन. सो हियर 4/3 is here and here it is only 1. So now we have to make the complete whole square. Whole square हमको complete करना है. So I is equal to 2/3 integral of 1 upon, you have to make t square is the first term, 2t into 2/3. So 2/3 will be the second term. Okay, that actually means 4/3 plus, so 2/3 is the second term, 2/3 is the value of b. So what is b square? It is 4/9. So we have to add 4/9, we already added, we subtract 4/9 and that plus 1 is like this into what? dt. Now here I is equal to 2/3 integral of 1 upon, that should be t plus 2/3 whole square, and that is 1 minus 4/9. How many? So 9 minus 4, that is 5/9 dt. Okay, now 5/9 can be written as, 5/9 can be written as root 5/3 whole square, root 5/3 whole square. So I is equal to integral of 2/3 integral of 1 upon t plus 2/3 whole square minus, sorry, not it is minus, it is plus root 5/3 whole square dt. It is in the form, t का टर्म है तो x लेना पड़ेगा. So x plus x square plus a square. What is x square plus a square? Integral of x square plus a square. 2/3 integral of 1 upon x square plus a square is 1/a tan inverse of x by a. So 1/a, 1 upon a means root 5/3 into tan inverse of x by means that is t plus 2/3 upon root 5/3 plus c. So 3 get cancelled. I should be 2 by root 5 into tan inverse of, so 3t plus 2 upon 3, और इसके upon 3 है तो ये डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे हम. सो मिला ओनली रूट 5 प्लस c. सो I is equal to 2 by root 5 into tan inverse of, it is 3. What is the value of t? T will be tan x by 2 plus 2 upon root 5 plus c. So that is your I. So in this way you can solve this type of problems, which is again very easy. Just we have to make sure here, so we need this method overall. हमको whole square complete करते आना ही चाहिए. That is the most important thing here. फॉर्मूला तो तुम ध्यान में रखेंगे ही. ओके, सो फॉर्मूला ध्यान में रखना है, मेथड ध्यान में रखनी है, और वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑल्सो. एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अगर तुमको एक फॉर्मूला पता है अगर, लेकिन उसको अप्लाई करने नहीं आता है, तो वो फॉर्मूला का कोई मतलब नहीं बनता. ओके, सो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला in this type of problem. Okay, so with this, that will be very easy. Now there are lots of problems, it is very similar to this. One more we can take 1 upon 4 minus 5 cos x. So that is 1 upon, so let I is equal to
इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस 5 cos x. cos x का प्रॉब्लम इजी होता है एज कंपेयर टू sin x. अब क्यों होता है वी विल सी फर्स्ट. नाउ आई शुड बी, नाउ इट इज इन द फॉर्म, एक तो sin x होगा नहीं तो cos x होगा, नहीं तो दोनों होंगे. So what we have to make, we have to put tan x by 2 is equal to t. So put tan x by 2 is equal to t, then dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square. Okay, then what we have to make, we know we want the value of cos x. We want the value of cos x only, not sin x. तो लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है. So cos x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. We already know this. So put here, so I becomes integral of 1 upon 4 minus 5 cos x is 1 minus t square upon 1 plus t square, and into dx means 2 dt upon 1 plus t square. That should be I equal to integral of 1 upon, you can make 2 outside from the starting, so we can solve it directly. So 4 into 1 plus t square होएगा, so 4 plus 4t square minus 5 into this, so minus 5 plus 5t square. नीचे में आएंगे 1 plus t square, so इसके नीचे भी 1 plus t square है, that will be cancelled directly. Okay, so we write it directly now. एक दो ये प्रॉब्लम में हम लिख देंगे, बाद में अगर हमको अच्छे से ध्यान में आता है सो वी कैन राइट इट डायरेक्टली. ओके, देन सो आई शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अगर 2 बाहर ले लिया पहले से ही तो क्या बचेगा 1 अपॉन 4t स्क्वेयर प्लस 5t स्क्वेयर मीन्स 9t स्क्वेयर. 4 माइनस 5 का मतलब होता है 1 dt. ओके, नाउ अब हमारी मेथड बहुत इजी है, दैट इज 90 स्क्वेयर. सो वी कैन मेक 2 by 9 into integral of 1 upon t square minus 1 by 9. 1 by 9 is the square of 1 by 3. So I can make, अगर ये मेथड तो है, ये मेथड तो हम हमेशा पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर मुझे इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करना है तो भी मैं कर सकूंगा. ओके, सो 9t का स्क्वायर यानी क्या हुआ, I is equal to 2 into integral of 1 upon 3t whole square minus 1 square dt. ठीक है, इसको पकड़ूंगा x, इसको a. ठीक है, x स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर क्या होता है, सो 2 into 1 upon 2a, 2 into 1 log of mod of x minus a. x minus a यानी 3t minus 1 upon 3t plus 1 प्लस c. अब प्लस c लिया, देखो t का कोएफिशिएंट्स क्या है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ t, विच इज 3. सो इंटीग्रेशन जब भी होगा तब हम क्या लेंगे, इंटू 1 by 3 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे ही, हमको करना ही है. सो अपॉन व्हाट 3. ये चीज ये ध्यान में रखो. दो वो मेथड से भी हम सॉल्व किया था, 9 बाहर निकाले थे, 2 by 9 हुआ था, वॉट एवर जैसे जैसे करके आंसर वो ही आएगा, और इससे सॉल्व करके भी आंसर वही मिलेगा आपको. 2 to get cancelled. So I is equal to a 3. So 1 by 3 log of mod of 3t. 3t means t means tan x by 2 minus 1. 3 tan x by 2 plus 1 plus what, c. So this is your I. This is your I. So that is the method that we have to follow in this type of problems. Okay. One more problem we like to study here. दैट इज, अब एक काम करेंगे, दोनों लेंगे. अब जैसे मिल रहा है हमको 1 अपॉन 2 cos x माइनस साइन x, 2 cos x माइनस साइन x, 2 plus cos x, 2 plus cos x minus sin x. So what? Nothing change. एक ही चेंज करना है हमको, sin x की वैल्यू भी लिखना है. सो sin x इज इक्वल टू व्हाट, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ओके, कुछ भी करेंगे यही आने वाला है, यही फॉर्मूला आने वाला है, होल स्क्वायर कंप्लीट करना ही है और बाद में 1-2 फॉर्मूला यूज करना है. ओके,
सो सेम मेथड इज देयर, प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छी तरह से तुम समझ पाओगे और अच्छी तरह से लिख पाओगे एग्जाम में। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, हम देख लेते हैं हाँ सर ओके ओके हो गया हमारा, ये तो हमको आता है, हम चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, हमको उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि बाद में ये होता है कि कौन से टाइप का कौन सा प्रॉब्लम है वो भी समझ में नहीं आता हमको, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा करो, प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी हमको, और इजीली हम ध्यान में रख पाएंगे कि कौन सी मेथड से कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन भी आवश्यक है। सो पुट साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज tan x by 2 इज इक्वल टू टी, वही से स्टार्ट करो, वही से पुट करो। सो आई बिकम्स इंटीग्रल ऑफ 1 upon 2 plus 1 minus t square upon 1 plus t square माइनस साइन एक्स की वैल्यू है 2t अपॉन 1 plus t square, dx की वैल्यू है 2dt अपॉन 1 plus t square। अब 1 plus t square में कैंसिल करवा दूंगा पहले ही, इसके नीचे नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1 अपॉन, सो 2 इंटू 1 plus t square करेंगे, प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर तो है ही, माइनस 2t है, अपॉन 1 plus t स्क्वेयर है वो कैंसिल हो गया इसके साथ, इंटू कितना मिला dt, 2dt। ओके, नाउ i इज इक्वल टू 2 बार निकाल सकते हो, यस ऑब्वियसली हम निकाल सकते हैं 2 बार, मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, एक इक्वेशन लाएंगे उसको कंप्लीट करेंगे होल स्क्वायर, 1 अपॉन दैट शुड बी 2 plus 2t square plus 1 minus t square minus 2t dt, I is equal to 2 into integral of 1 upon 2t square t square, so t square only, minus 2t, 2 plus 1 3 dt। अब इसको होल स्क्वायर कंप्लीट करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि 2t है, 2t इंटू 1 होगा, 1 होगा या नहीं, सेकेंड टर्म 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 है, तो ये 3 दिखता है ना, तो 3 को ये काम कर देंगे, 3 को स्प्लिट कर देंगे, 2 इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 प्लस 2 dt। नाउ हियर 1 plus 2 you can make 3, so that will be t square minus 2t plus 1, this is the whole square। So 2 into integral of 1 upon t minus 1 whole square plus 2 means root 2 whole square dt, ये हुआ x square plus a square, x square plus a square, so I should be equal to 2 into x square plus a square होता है 1 upon a means root 2 tan inverse of x by a means t minus 1 upon root 2 plus c, so I is equal to 2 by root 2 is equal to only root 2 tan inverse of t minus 1 upon root 2 plus c, so this is I, ठीक है। in this way you can solve this type of problem। okay, one more thing, one more problem I like to take, एक 2x वाला ले लेंगे and we done it, 2x वाला ले लेंगे, that is कोई भी एक ले लो, एक 7th नंबर का प्रॉब्लम लूंगा मैं 2x वाला, जिसमें sin 2x और cos 2x दोनों हैं। so 1 upon 3 2 sin x plus 4 cos x 2x dx। okay, now whenever there is a 2x cos 2x and sin 2x, what we have to make, we have to make some one change, that is instead of tan x by 2 we put tan x is equal to t, and then dx is only dt by 1 plus t square, and then sin x is again same and cos x is again same, so sin 2x भी और cos 2x भी same होगा, dx क्या होगा, अगर 2x आया sin 2x cos 2x we put tan x is equal to t, then dx is not 2 dt, only dt upon 1 plus t square,
cos x सेम है, sin x भी सेम है, सिर्फ हमको यहाँ पे करना पड़ेगा 2x. ओके, नाउ वी हैव टू मेक हियर I इज इक्वल टू, बनाओ उसको 1/3 प्लस 2 into sin x, that is 2t upon 1 plus t square plus 4 cos 2x, 4 cos 2x यानी 4 into 1 minus t square upon 1 plus t square into only dt upon 1 plus t square. अबे 2 नहीं आया, पिछले इसमें 2 आया था. ओके, देन try to solve this. I is equal to integral of, अब हम डायरेक्टली ट्राई करेंगे. फॉरगेट अबाउट दैट 1 प्लस टी स्क्वायर वो कैंसिल ही होने वाला है. अब यहाँ पे नहीं है 1 प्लस टी स्क्वायर नीचे, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे. सो वो होगा 3 प्लस 3t स्क्वायर. डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे आएगा 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर. सो 3 प्लस 3t स्क्वायर, ये होगा 2 इंटू 2t, दैट इज प्लस 4t. ठीक है, और ये हुआ 4 माइनस 4t स्क्वायर dt. सो I शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, अब 3t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, सो ये माइनस t स्क्वायर हुआ, 3 प्लस 4 7 हुआ, 4t तो है ही, प्लस 4t dt. हमने सॉल्व किया है जहां पे पिछले बार माइनस एक्स स्क्वायर होता था, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा यहां पे. ओके, सो I इज इक्वल टू, व्हाट इज दैट मेथड? दैट मेथड इज 1 अपॉन 7 लिख के हमको क्या लिखना था, माइनस बाहर निकाल के t स्क्वायर, और यहां पे लिखना था माइनस 4t. देखो सेम हुआ, सिर्फ माइनस बाहर निकला. इसको पहले इसको होल स्क्वायर कंप्लीट करो. अगर 4t है तो उसको हम क्या लिखेंगे? सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 7 माइनस, ये है t स्क्वायर, ये है 2 इंटू t इंटू, इसको लिखेंगे 2. अगर मैंने इसको 2 लिखा तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा 4. ठीक है, मैं करूंगा ब्रैकेट कंप्लीट. सो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 4 ले चुका हूं मैं, तो प्लस 4 लूंगा. ठीक है, इंटू वॉट, dt. कल मैंने डिटेल में 1-2 प्रॉब्लम लिया है, वहां से तुम ध्यान में कर सकते हो. सो I शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, हमको ये मिला पहले 7 प्लस 4 11, माइनस हमको मिला t माइनस 2 होल स्क्वायर dt. दैट विल बी, I शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 11 स्क्वायर माइनस t माइनस 2 होल स्क्वायर dt. ये हुआ तुम्हारा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होंगे? सो I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a, a मीन्स अंडर रूट 11, लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स, यानी अंडर रूट 11 प्लस t माइनस 2, और नीचे अंडर रूट 11 माइनस a माइनस एक्स, यानी t माइनस 2 प्लस c. सो I शुड बी 1 अपॉन 2 अंडर रूट 11 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 11 प्लस अंडर रूट 11 प्लस, ये होगा माइनस 2, माइनस 2 प्लस t मीन्स tan x, और नीचे अंडर रूट 11 माइनस और माइनस 2, दैट इज प्लस 2 माइनस t मीन्स tan x प्लस c. ओके, सो दिस इज योर I, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर. एंड follow this method to solve this type of problem, especially whenever there is a square minus x square. Whenever a square minus x square का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो तुमको थोड़ा सा ध्यान में रख के उस मेथड को फॉलो करना है. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. दिस इज 2.b. 3.2b रिमेनिंग प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व एट होम. यू सॉल्व एट एज ओन, बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है, इजीली तुम सॉल्व कर पाओगे. ओके, सो that's all from today.
नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ. बाय बाय.